One morning, the busy doctor invited Sue into the hallway with a shaggy grey eyebrow. She has one chance in, let us say 10, he said as he shook down the mercury in his clinical thermometer. And that chance is for her to want to live. This way, people have of lining up on the side of the undertaker makes the entire Permacopoeia look silly. Your little lady has made up her mind and she's not going to get well. Has she anything on her mind? ओके अब यहाँ पर डॉक्टर ने हॉलवे में सू को बुलाया क्योंकि सू उसकी दोस्त थी और उससे कहा कि 10 में से इसकी एक चांस है कि शायद ये ठीक हो जाए और वो खुद ही जीना नहीं चाहती है और मैंने सब कुछ करके देख लिया है मगर उसके मन में कुछ और चल रहा है इसलिए वो जीना नहीं चाह रही है और इसलिए उसका ठीक होना और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है. She wanted to paint the Bay of Naples someday, said Sue. Paint? Bosh. Has she anything on her mind worth thinking about twice? A man, for instance? A man, said Sue, with a Jew's harp twang in her voice. Is the man worth? But no, doctor, there is nothing of the kind. Okay. अब यहाँ पर उसने कहा कि जॉन्सी के मन में था कि वो बे ऑफ नेपल्स ड्रॉ करे कोई पेंटिंग है मगर डॉक्टर ने बोला कि ऐसी वाली बात नहीं कुछ कुछ खास बात जैसे कि वो बार बार सोचे किसी आदमी के बारे में मतलब उसका कोई दोस्त हो तो उसने पहले सोचा उसने कहा कि क्या सही में कोई आदमी है उसकी लाइफ में फिर उसने कहा नहीं उसकी ऐसा कुछ भी नहीं है उसकी लाइफ में वो मतलब उसकी लाइफ में कोई भी आदमी नहीं है. Well, it is the weakness then, said the doctor. I will do all that science so far as it may filter through my efforts can accomplish. But whenever my patient begins to count the carriages in her funeral procession, I subtract 50% from the curative power of medicine. If you will get her to ask one question about the new winter styles in cloak sleeves, I will promise you 1 in 5 chances for her instead of 1 in 10. Okay. अब यहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि ज़रूर उसको वीकनेस हो रही होगी शायद इस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है मगर जो भी लोग अपने प्रोसेशन का फ्यूनरल पहले से ही देखने लग जाते हैं मतलब जो अपने मरने की सब विधियां पहले ही सोचने लग जाते हैं उनके लिए मेडिसिन भी काम करना कम कर देती है और फिर यहाँ डॉक्टर ने बोला कि क्या तुम उससे पूछो आजकल की नई डिज़ाइंस क्या चल रहे हैं कपड़ों के ऐसे कुछ पूछो अगर वो इंटरेस्ट दिखाती है तो फिर उसकी चांसेस बढ़ जाएंगे 1 in 10 जो बोला था वो 1 in 5 हो जाएंगे उसके चांसेस बढ़ जाएंगे जीने के. After the doctor had gone, Sue went into the workroom and cried a Japanese napkin to a pulp. Then she swaggered in Johnson's room with her drawing board, whistling ragtime. Okay, अब यहाँ पर सबसे पहले जैसी डॉक्टर गया वो अपने वर्क रूम में गई और वहाँ जाके रोई और नैपकिन को पूरा गीला कर दिया जो रुमाल होता है और उसके बाद जब नॉर्मल हुई तो वापस रूम में गई जॉन्सी के और उसको एक ड्राइंग बोर्ड दिया और विसल कर रही थी कि ऐसा नॉर्मल बताने के लिए कि तुम ड्राइंग करो. Johnsy lay scarcely making a ripple under the bedcloth, with her face towards window. Sue stopped whistling, thinking she was asleep. Okay, अब यहाँ पर जॉन्सी लेटी हुई थी और उसका जो चेहरा था वो विंडो की तरफ था और उसको लगा सू को कि वो सो रही है. She arranged her board and began a pen and ink drawing to illustrate a magazine story. Young artists must pave their way to art by drawing pictures for magazine stories that young authors write to pave their way to literature. अब यहाँ पर इनको जो यंग आर्टिस्ट होते हैं इनको जनरली
जो और लोग जो लिखते हैं मैगजीन्स में, उनके लिए कुछ ना कुछ ड्रॉ करने के लिए दिया जाता है, जिससे वो कनेक्टेड रहे और उनको पे भी मिलता रहे. As Sue was sketching a pair of elegant horseshoe riding trousers and motorcycle on the figure of the hero, an Idaho cowboy, she heard a low sound several times repeated. She went quickly to the bedside. ओके अब यहाँ पर ये स्केचिंग कर रही थी सू उधर ही बैठ के, और उसने हॉर्स शू ट्राउज़र्स बनाए थे, मोनोसाइकिल बनाई थी, और एक फिगर बनाया था हीरो का जो काउबॉय था. ऐसे करके वो कुछ बना रही थी, उसको कुछ आवाज़ आई और वो बेड के साइड में गई. Johnson's eyes were open wide. She was looking out of the window and counting backward. 12, she said, and little later 11, and then 10 and 9, and then 8 and 7, almost together. अब ये काउंट कर रही थी, वो भी बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी, और ये चीज़ सू को समझ नहीं आ रही थी. Sue looked solicitously out the window. What was there to count? There was only a bare dairy yard to be seen, and the blank side of the brick house 20 feet away. An old ivy vine, gnarled and decayed at the roots, climbed halfway up the brick wall. The cold breath of autumn had stricken its leaf from the vine until its skeleton branches cling, almost bare, to the crumbling bricks. अब इसने बहुत ही कॉन्शियसली होके बाहर देखा सोने की क्या क्या है वहाँ पर. तो वहाँ पर ब्लैंक साइड थी, ब्रिक की जो वॉल मतलब बगल वाला घर था वो 20 फीट दूर था. एक आईवी वाइन थी, एक क्रीपर था आईवी का, और वो ऑलमोस्ट उसकी रूट्स डीके हो चुकी थी, उसका ऑलमोस्ट स्केलेटन जैसे बोलते ना कि वो वहाँ पर था, और वो वहाँ पर लटका हुआ था, उस पर थोड़ी बहुत लीव्स थी बस. तो वो उसने ये चीज़ें देखी. अब उसने पूछा कि क्या हुआ है. What is it, dear? asked Sue. 6, said Johnsy in almost a whisper. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100. It made my head ache to count them, but now it's easy. There goes another one. There are only 5 left now. Okay, अब जॉन्सी ने समझाया कि वो जो पेड़ है उसकी पत्तियां गिर रही हैं. पहले 100 थी, अब सिर्फ 5 बची है, और अब गिनना ज़्यादा आसान है. 5, what dear? Tell your Sudi. Leaves on the ivy vine. When the last one falls, I must go too. अब उसने ये सोच लिया था कि जैसे ही लास्ट आईवी लीव गिरेगी वैसे ही ये मर जाएगी. इसने अपने आप को साइकोलॉजिकली ऐसा सोच लिया था, अपने मन में विचार डाल लिया था. अगर आप ऐसा कुछ सोच लो कि क्योंकि ये हो रहा है, अगर ये हो गया तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तो वो चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं और आप वैसा ही सोचने लगते हो और वैसा ही आपको लगने लगता है कि सही होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा होने भी नहीं वाला था कि वो आईवी लीव गिरती और ये मरती, मगर फिर भी इसके मन में इसने सोच लिया था, और क्योंकि ये बीमार थी इसीलिए ये चीज़ें और ज़्यादा इसको इफ़ेक्ट कर रही थी. Didn't the doctor tell you? I have known that for 3 days. Didn't the doctor tell you? Oh, I never heard of such nonsense, complained Sue with magnificent scorn. What have ivy leaves to do with your getting well? अब यहाँ पर सू बोल रही थी कि ये तुम फालतू सोच रही हो, और वो कह रही थी कि डॉक्टर ने तुम्हें बताया होगा कि ये मैं ऐसा सोच रही हूँ. तो वो ऐसी बातें चल रही थी. And you used to love that wine so, you naughty girl. Don't be a goosey. Why, the doctor told me this morning that your chances for getting well real soon were. Let's see exactly what he said. He said the chances were 10 to 1. Why, that's almost good a chance
as we have in New York, when we ride on the streets, cars, or walk past a new building. Try to take some broth now and let Sudi go back to her drawing so she can sell the editor man with it and buy port wine for her sick child and pork chops for her greedy self. ओके अब यहाँ पर ये बात हो रही थी कि उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम्हारे चांसेस बहुत अच्छे हैं ठीक होने के, डॉक्टर ने बताया है। और जब भी न्यूयॉर्क में अपन चलते हैं, स्ट्रीट्स पे कार्स आती हैं, न्यू बिल्डिंग बनती है, तब भी उतनी ही चांसेस होते हैं ठीक रहने के जितने चांसेस यहाँ पर हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क में भी जब कोई कार्स जाती हैं तो वो सब बहुत रैश चलाती हैं, तो तब भी उतना ही डर रहता है जितना इधर तुम्हें डर है मतलब जीने का। मगर कोई बात नहीं है, तुम ठीक हो बिल्कुल, और तुम सब भूल के ये थोड़ा सूप पियो और मेरे को ड्राइंग करने दो, जिससे मैं ये ड्राइंग बेचूंगी और मुझे जो पैसे मिलेंगे उससे तुम्हारे लिए वाइन लूँगी और ख़ुद के लिए पोक चॉप्स वुड बी सम नॉन वेज, जो ज़्यादातर फॉरेन में नॉन वेज खाया जाता है। तो यहाँ पर ये वाली बातें चल रही थी कि तुम सब ठीक हो, तुम्हारे चांसेस अच्छे हैं और तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, ये सू कह रही थी उसको समझाने के लिए।